آپ کی ہوسٹ عائشہ رانا اور آج کا ہمارا جو ٹاپک میں آپ کے لیے حاضر ہوئی ہوں لے کے اس کا نام ہے پروگرام ایشو ٹوڈے۔ ایشو ٹوڈے میں ہم بات کریں گے آج لوکل سطح پر گورنمنٹ نے کیا کام کیے، غریب بھوک سے مر رہے ہیں، حکومت نے غریبوں کو کتنا ریلیف دیا اور کیا ریلیف ملا اور یا ملے گا۔ اس کے علاوہ 50,000 گھر بنا کر دینے کا جو وعدہ گورنمنٹ نے کیا تھا کتنا وہ پورا ہوا، وہ پورا ہوگا یا پھر اسی امید کے ساتھ غریب جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے بھی ترستے رہیں گے۔ آج ہم نے ان تمام باتوں پر بات کرنے کے لیے جن معزز مہمانوں کو یہاں پر دعوت دی ہے ان میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حاجی ملک شکیل صاحب جو کہ رہنما پی ٹی آئی ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سمیع اللہ خان برکی صاحب جو کہ پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نڈھال بلوچ صاحب جو کہ چیئرمین کیپٹل پراپرٹی کنسلٹنٹس ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ عوام کے مسائل جو ہیں وہ کب حل ہوں گے اور اس پہ یہ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم حاجی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، ہمارا جو پہلا سوال ہے میں آپ سے ہی شروع کروں گی کہ آپ جو ہیں وہ پہلے آئی تھنک پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے تھے، اس کے سپورٹر سے رہے ہیں، تو ابھی کیا وجوہات ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا؟ تھینک یو، شکریہ، آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا جی، اور اپنے چینل میں بات یہ ہے کہ ہمارا حلقہ 91 چودھری انصار علی خان سے، اچھا صحیح، اور چودھری انصار علی خان آپ کو پتہ ہے کہ وہ مانے پہچانے اچھا شخصیت ہے۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ نچلی سطح پہ حلقے میں اٹھنا بیٹھنا بہت کم کرتے ہیں، صحیح، ہم لوکل سطح کے لوگ ہیں اور ہمیں ترقیاتی کام کسی گورنمنٹ میں زیادہ ہو جاتے ہیں، کسی میں کم ہو جاتا ہے، بالکل جی۔ لیکن حلقے میں میل جول، تو آپ یہ سمجھتے تھے کہ پی ایم ایل این میں ترقیاتی کام اتنے زیادہ نہیں ہوتے اسی لیے آپ نے سوئچ کیا پی ٹی آئی کو؟ کام بھی نہیں ہوئے ان کے دور میں، کیونکہ ملنا ملانا ہی ان کا اتنا مطلب ہے کہ نہیں تھا عوام کے ساتھ۔ اچھا، اگر ملنا ملانا ہوتا تو انہیں عوام کا مطلب بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا پھرنا ہے نا، ابھی تک وہ علاج کروانے گئے اور واپس نہیں آئے ہیں۔ ایسے ہی۔ تو یہ وجہ ہم جاننا چاہیں گے سمیع اللہ خان صاحب آپ سے، آپ پی ایم ایل این کے سپورٹر ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ بتائیں گے ہمیں کہ جو ہے وہ کیا وجوہات ہیں کہ لوگ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو چھوڑ کے جو ہے وہ پی ٹی آئی جوائن کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 2013 سے 2018 جی 5 سال کی کارکردگی کی رپورٹ اٹھا لیں، آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ کارکردگی کے لحاظ سے تو پاکستان کی تاریخ میں پی ایم ایل این کا جو دور گزرا ہے وہ سنہرا دور ہے۔ لیکن یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے جو سنہرا دور جو کام کے حوالے سے، ملک کی ترقی کے حوالے سے، تو 2013 سے 2005 کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ کو کوئی چھوڑ کے جانے والا ہوتا تو آج تک آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے ٹف حالات میں کوئی ایک ایم ایل اے چھوڑ کے گیا ہے، کوئی ایک ایم پی اے چھوڑ کے گیا ہے، کوئی ایک کسی ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ چھوڑ کے گیا ہے۔ اب کسی کا کسی کے ساتھ ذاتی کسی کا اختلاف کوئی ہو سکتا ہے کسی حلقے میں، وہ چھوڑ کے چلا جائے وہ کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو جانا رہتا ہے۔ پارٹیاں تو بہت بڑے سمندر ہے، نظام کیا مسلم لیگ نون سے چودھری انصار صاحب کی اگر ناراضگی ہے تو وہ ان کی ہے، وہ ناراضگی ہے تو ایک ماں کے پیٹ سے 4 بچے پیدا ہوتے ہیں، ان میں بھی اختلاف ہوتا ہے، تو پارٹی تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اس میں مسلم لیگ سے کوئی چھوڑ کے نہیں گیا الحمدللہ۔ لیکن ابھی جو سمیع اللہ خان صاحب آپ بات کریں یہ ہائی رینک پہ بات کریں، لیکن جو نارمل لوگ ہیں جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کا حلقہ کون سا ہے حاجی صاحب آپ کا؟ حلقہ جو ہے 91 ہے، 91 ہے، 59 ہے، 59 ہے، 59 ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو وہ اس سے دیکھیں نا، یہ جب نچلی سطح پہ اگر بات کی جائے تو یہ نون لیگ جو ہے وہ نچلی سطح کو دیکھتے ہی نہیں ہے کیا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں ہر یو سی وائز مطلب 3 وہ ہوتے ہیں، ایک یو سی ہے، یو سی ریپرزینٹ کرتی ہے حلقے کو، ہر حلقے میں کچھ یو سیز ہوتے ہیں جی، جس طرح کسی میں 20 ہے، کسی میں 30 ہے، کسی میں 40 جی۔ اب اس یو سی وائز اپنی ایک الگ ہرارکی ہوتی ہے، ہر پارٹی کی ہر جماعت کی الگ الگ سیٹ اپ ہوتا ہے۔ اب یو سی کرتی کیا ہے وہاں پہ لوکل مطلب جس طرح ناظم تھے ہمارے، یا جس طرح کی مطلب ہمارے چیئرمین تھے، جس طرح بلدیاتی لوگ تھے، وہ سٹنگ جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے یہ کہ وہ اپنے علاقے کی
पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि जो विनर होता है उसी के पास फंड होता है, बिल्कुल। उसी के पास सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल। तो नीचे सतह पे ये चीजें चलती रहती है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है वो भी। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर PMLN को किसी ने सपोर्ट दिया, PTI ज्वाइन किया, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेजोरिटी हमने देखा ना, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, हमने हाँ, देखा, हाँ। उसमें कुछ लोग होते हैं जो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। अच्छा। जैसे वो दूसरी मतलब बहुत सूरज अब ऐसे लोग चौधरी साहब के हल्के में मैं आपको गिना सकता हूँ कि जो नस्लों में जब तक चौधरी साहब इक़्तिदार में थे तो वो उसी के गाने गाते रहे। आज अगर इक़्तिदार में नहीं, आज वो थोड़े से नाराज है तो साइड पे हैं, तो वो लोग लाजमी बात है कोई दूसरा घर का दरवाजा तो ढूंढते हैं ना, वो चले जाते हैं ना अपनी मफाद, अपनी मामलात के लिए, अपनी अच्छा, चीज़ों फिर मामलात के लिए चले जाए। नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं है ये, आप ये कहना चाहते हैं। चले, इसके साथ साथ हमारे साथ जो निधाल बलोच साहब बैठे हैं, आप माशाल्लाह से इतनी यंग एज में जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारा बिजनेस कर रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं माशाल्लाह से। तो इसमें आप बताएं कि जो गवर्नमेंट ने 50,000 घर बनाने का, शायद कम या ज्यादा शायद मैंने कह दिया हो, लेकिन 50 लाख नहीं थे। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। चले, थोड़ी क्वांटिटी कम कर लेते हैं ना। तो ये कब तक जो है आपको नजर आते हैं? आपका ताल्लुक है रियल एस्टेट से, तो आपको तो पता होगा कि इसका क्या स्टेटस चल रहा है अभी। इंशाल्लाह जी, उम्मीद तो है कि ये 4 से 5 साल में ये वाला काम नजर आता है, लेकिन वो भी 50,000 तो दूर की लेकिन बात अभी है। तो इनके पास 2 साल बचे हैं ना, तो ये 4 से 5 साल तो हमने लंबा टाइम बता दिया। काफी लंबा टाइम है ये तो मेरे ख्याल 4 से। से 5 साल में भी इसकी यही उम्मीद है कि अच्छा। 5-7 हजार घर अगर बना देंगे तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। बड़ी मेहरबानी होगी, ये मेरे ख्याल से इंडायरेक्ट जो है ना, हाजी साहब आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चले, आपसे जान लेते हैं कि ये कहाँ तक इसका जो है वो प्रोसेस है, किस तरह से चल रहा है, और कब तक ये गरीब को घर मिलेंगे, या फिर जो महंगाई चल रही है और वो खाना भी जो है वो गरीब खाता है बेचारा 2 टाइम का, वो भी उनसे वापस छीन लिया जाएगा, ये क्या है? देखिए, जो हालात हैं हमारे मुल्क के ना, महंगाई ये PTI गवर्नमेंट ने नहीं की है। जी। महंगाई जो है ये पिछली साबका जो हुकूमतें गुजरी हैं उनकी नॉर्मल पॉलिसियों की वजह से हुई है। बिल्कुल। और उम्मीद है कि हमें इंशाल्लाह इस पे जल्द काबू पा जाए, कर दिया जाएगा। कोशिश तो जारी सारी है। हाँ जी, कोशिश पे इंशाल्लाह देखें, ऐसी कोई बात नहीं है कि एक मैं मिसाल आपको देता हूँ, छोटी जी, जी, बिल्कुल, देता हूँ जी। कि घर में अगर एक कोई बीमार हो जाता है ना पेशेंट, तो घर वाले जैशियां नहीं मारेंगे, उस पेशेंट के लिए थोड़ा सा अपनी जैशियों को हाँ, कम कर देंगे। हाँ जी, जी जी। तो इसी तरह मुल्क का भी जो है ना अपने घर की तरह मिसाल मैं आपको देता हूँ कि घर की तरह भी चलता है। जब तक ये पिछली जो ये नाकस पॉलिसियां की हुई है, कर्ज लेके और मुल्क पे इतना कर्जा छोड़ के गए हुए, तो ये टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। और इंशाल्लाह मैं आपको बात बताऊं कि ये हमारा जो इमरान खान साहब है, इसी पे उम्मीद है, लेकिन अब पीछे बारियां लगी रही हैं। कभी PTI आ गया, मुरली का आ गया, कभी दूसरा आ गया, बैक टू बैक ये आते जाते रहे हैं। तो अब इसके अलावा तो आप मुझे बताएं ना चौथा और कौन है? इसी पे हर बंदे की नजर है, और इंशाल्लाह बेहतर नजर आ रहा है हमें, यानी बेहतरी की तरफ जो है हमारा मुल्क ज्वाइन की है ना। तो मैंने उनकी कुछ कारकर्दगियां देखी हैं, अच्छा, उनकी अच्छाइयां देखी हैं, और उन पे तकरीबन 8-10 महीने हुए हैं। अच्छा। 8-10 महीनों में उन्होंने हमें काफी रिस्पांस दिए। अच्छा। हमारे हल्के में अच्छा, अपने हल्के की बात करते हैं जी, बिल्कुल। तो हमारे जो पीछे मतलब है कि नून लीग ने काम नहीं किए थे हमारे, तो इन्होंने उस हवाले से देखा जाए तो काफी हमारा जो है, जो उम्मीद लेके हम लोग नून को छोड़ा, क्योंकि पिछली दफा नजर आ रहा था कि नून लीग हार। अच्छा, नून लीग आपका सुनते ही नहीं थे, मतलब आपके छोड़ने की वजह यही थी? नून लीग हार रही थी, हर बंदे को नजर आ रहा था। चौधरी इंसाफ साहब जो है वो नून लीग को छोड़ चुके थे। अच्छा। और हमारे नून लीग में 2 धड़े बन चुके थे। हमने नून लीग को नहीं छोड़ा। अच्छा। निस्बत चौधरी को हमने छोड़ दिया, नून लीग को नहीं छोड़ा, क्योंकि नून ने उसने छोड़ दिया था नून को। सही। और हम नून में रहे और अपना पोलिंग जीत भी गए थे। अच्छा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सही। अपना पोलिंग जीत भी गए थे। और जिन बंदों ने जिनको टिकट मिला हुआ था हमारे हल्के अच्छा। से, राजा कमर इस्लाम साहब, अच्छा, उस वक्त वो जेल में थे, और MPA मलक फैसल कयूम साहब थे, PP 12 से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। ठीक है। हमने उन दोनों को अपने हल्के से, अपना मतलब है कि पोलिंग से दोनों को जीत गए, उन्हें जाकर रिजल्ट दिया। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने तकरीबन 2.5 साल गुजरे हैं। 2.5 सालों में अपने हल्के में चेहरा नहीं कराया, किसी फौतगी में, किसी गमी खुशी में इतला भी दी गई है। वो चीजें बदल दे के हम लोग देती हैं। हम लोग तो ये चीज देख रहे हैं, यार हमारी गमी खुशी में कौन आया है, बिल्कुल ये चीजें महसूस होती हैं। हाँ जी, काम हर गवर्नमेंट कोई ज्यादा करती है, कोई कम कर लेती है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हम देहाती लोग हैं, हम तो चीज पे ज्यादा फॉलो करते हैं कि यार हमारी गमी खुशी में हमने किसी को इतला दी, किसी ने सुना, कौन आया नहीं आया। 2.5 साल में
ये बंदे इलेक्शन ठीक है हार गए जी। हैं, नहीं बनी इनकी गवर्नमेंट, लेकिन हमारी तो मेहनत थी ना। हाँ जी बिल्कुल हमने सही अपना है। पोलिंग इनको हाँ जी दिया। बिल्कुल। उन्होंने वापस कोई अपनी उस तरह मतलब हमें response अच्छा नहीं दिया। नहीं दिया। लेकिन इनकी हमने पीटीआई गवर्नमेंट की जिस वक्त हमने दाएं बाएं काम देखा, हाँ। उनका उठना बैठना देखा, मैंने एसपीए का अच्छा लोगों के साथ मेल मिलाप देखा, सही। और हम बड़े मतलब उसमें मुतासर हो गए और उस उम्मीद से हमने मतलब है कि नून लीग को छोड़ा और पीटीआई ज्वाइन की। चले और पिछले 8 महीने से हमारा जो जैसे हमारी सोच थी, हाँ जी, उससे बढ़ के उन्होंने हमारा साथ दिया है। चले ये तो अच्छी बात है। अच्छा समील खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, पीडीएम तो सियासत नाकाम हो चुकी है मेरे ख्याल से, अगर मेरा ख्याल सही है तो तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इसकी नाकामी की क्या वजूहात रही हैं? देखिए पीडीएम बिल्कुल नाकाम नहीं हो चुकी। अच्छा आप अभी भी नहीं मान रहे हैं? देखे सारी दुनिया मानती है। ऐसा नहीं है। बात अच्छा। यह है कि देखिए आप थोड़ा सा जिले लगे, पीटीआई ने 127 दिन का धरना आपको भी याद होगा। एहतजाज कोई ऐसा शहर नहीं रह गया होगा कि जिसने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज ना किया होगा। और स्टेज पे उनके वो अल्फाज भी आज तमाम आपके टीवी चैनल, आपका कैमरा ही दोहराता है जी, कि वो कहते थे कि हमारे पास 200 माहिरे माशियात हैं। अच्छा। जैसे हम हुकूमत में आएंगे तो पहले 90 दिनों में अपना मुल्क का रुख ही बदल देंगे। अच्छा। फिर वो 6 महीने पे चला गया, सही। फिर वो 1 साल पे चला गया, ठीक है। फिर वो 2 साल पे चला गया, अब 3 साल पूरे हो गए। 3 साल बाद ये पता चल गया कि वो जो माहिरे माशियात हम समझते थे, वो कह रहा था कि मेरे पास 200 माहिरे मंशियात है। अच्छा। वो आज हमें पता चला 2 साल 3 साल बाद। 3 साल बाद। बात यह है कि बड़ी माजरत के साथ हिसाब से मेरा एक दरखास्त है कि 3 साल 5 साल 8 साल से आपके हुकूमत में है। हाँ जी। 3 साल आप इस वफाक में हुकूमत में हैं जी। इस 3 साल में जब आपने ये हुकूमत टेक ओवर किया था तो आपके ऊपर पाकिस्तान का कर्जा कितना था? पाकिस्तान के 70 साल का कर्जा कितना था? दूसरी बात ये कि उस वक्त इस मुल्क का रुख क्या था? उस वक्त बिजली के रेट्स क्या थे? उस वक्त के पेट्रोल के रेट्स क्या थे? उस वक्त आपका डॉलर कितने का था? आज 3 साल बाद आप अपने कर्जे को उठा ले, जो कर्जा आपने 3 सालों में लिया वो पिछले 70 साल से ज्यादा का कर्जा आपने 3 सालों में ले लिया। दूसरी बात उसमें ये समझ लें कि मुझे कोई एक प्रोजेक्ट इन 3 सालों में बता दें। मैं आपको यहाँ पे चैलेंज करता हूँ, कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बता दे कि इस 3 सालों में पीटीआई गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिससे इस मुल्क की तरक्की में कोई किरदार आ रहा। दूसरी बात यह कि पीटीआई की बात आप कर रहे हैं, आप उस पार्टी की बात कर रहे हैं जो फेसबुक से बनी होती है और फेसबुक पे ही तक ही महदूद है। आज तक कोई एक भी काम फेसबुक के अलावा आप बता दें कि उन्होंने प्रैक्टिकल में किया। सेकंड, जिस पार्टी के पास, जिस हुकूमत के पास वजीर दाखिला के लिए क्या मैंने नहीं पूरी पार्टी में मिल सकता, जिसके पास वजीर खजाना के लिए अपना एक मेंबर नहीं बन सकता, जिसके पास आप देख तो ले यार, आपके कौन सा मिनिस्टर है जो आपका है? कौन सा ऐसा बंदा है जो पीटीआई का है? कौन सा बंदा है जो इस वक्त हुकूमत में आपने कैबिनेट में बिठाया? 3 से 4 लोगों के अलावा। खुदारा इस मुल्क के साथ जो आपने इन अवाम को, हमारे मुल्क को गुमराह किया, अवाम अब समझ चुकी है। आई साहब की अब गलती हो गई, आई साहब को किसी ने सबक बात दिखा दिया, लेकिन आई साहब ने पूरी बात सुनी नहीं है उनकी। अगर वो सुनते तो वो ये कभी ये फैसला ना करते। आज इस मुल्क की वो अंधेरे में धकेलने में जो किरदार इस हुकूमत ने किए, इस मुल्क को अंधेरे के किस दरवाजे। अच्छा चले सर, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई डेट दे रहे हैं आप हमें, कोई बता रहे हमें? बहुत जल्द। देखिए ये तो आपके जिस भी पार्टी के मेंबर से पूछा जाए ना, वो यही कहता है कि बहुत जल्द तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन अभी तो उनको गए हुए देखे मेरे ख्याल से कोई काफी 2 साल 2.5 साल तो हो चुके हैं, उनके मेरे ख्याल रिटर्न टिकट वो नहीं लेके गए थे शायद यहाँ से। एक बात बताऊं, मियां नवाज शरीफ को तो आपने मिलते करके भेजा था कि खुदा आप चले जाए। वो तो उसकी रीजंस भी तो आपको पता है ना, वो तो जैसे जहाज की सीढ़ियों में चढ़ने लगे हैं तो उनकी बीमारी जो है वो खत्म हो गई, वो बिल्कुल चली गई। और हाँ जी, हाँ जी, जैसे उन्होंने जहाज देखा उनके अंदर जान भर गई, उनके अंदर जान भर गई है। हाँ जी, आज आप मिलते करते हैं कि मियां नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान में आ गया और पाकिस्तान में वो पहुंच जाए तो पाकिस्तान की ये 2-2 साल की जो हुकूमत है ये चल नहीं सकती।
अच्छा मियां नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान में होंगे तो आप एक दिन में नहीं चल सकते। हमने तो आपको 5 साल का टाइम दे रहे हैं अब आपको। हमारी तो ये पॉलिसी कि आप 5 साल पूरे करें। जो गुमराही आपने अवाम को गुमराह किया, अब आप खुद 2023 में फैसला करें कि सच क्या है झूठ क्या है। 5 साल में आपने कारकर्दगी दिखानी है। अच्छा चले 5 साल में अगर हुकूमत सपोर्ट किसी को नहीं मिलेगी जो आपको मिली। सही। 3 साल में बता दे कोई एक प्रोजेक्ट बता दे, ये देश ये मैदान कोई एक प्रोजेक्ट बता दे कि आपकी हुकूमत ने 3 सालों में किया। अच्छा चले इसके साथ साथ 2 लाख करोड़ घर, नौकरियां, वो सबज बाग है कोई हाजी साहब आप बोलना चाहते हैं? देखिए मैंने आपसे पूछा सवाल क्या। मेरे भाई कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत प्रोजेक्ट किए हैं, इतने प्रोजेक्ट किए हैं, इतने प्रोजेक्ट किए हैं कि वो अपना इंग्लैंड में किए सारे, मेरी सुने, लंदन में वो अपना इलाज कराने के हाँ लिए जी। लंदन चले गए। हाँ जी यहाँ पाकिस्तान में इलाज नहीं हो सकता। हाँ पाकिस्तान में इलाज नहीं हो सकता तो पाकिस्तान में किया क्या है? क्या क्या है? लेकिन अब गरीब आवाम के लिए फिर क्या किया है? चले इमरान खान ने तो गवर्नमेंट गरीब आवाम को भी लेके आप इंग्लैंड जाएंगे इलाज कराने के सही बात सरकार की तो ये है। ऐसा ही है, ऐसा ही है कि जो गरीब आवाम बेचारी वहाँ बोल रही है, नारे लगा रही है, और हमारे लीडर साहब ना वहाँ बैठे हुए हैं। देखे ये देखे ना, हाँ लीडर क्या मानते हैं? चले इसके के लिए जनाब वो जाके इंग्लैंड लंदन छुपे हुए हैं जी। ये तो सब देखिए, अब आपको ये बात तो थोड़ी सी मान लेनी चाहिए स्माइल के साथ कि आपके नवाज शरीफ साहब के रिटर्न टिकट वो नहीं लेंगे, वो कब वापस आ रहे, तो रिटर्न टिकट तो जल्दी कर जाएगी लेकिन वो आना नहीं चाहते हैं। जो आपके 2 साल है, हम तो चाहते हैं कि आप एक्सपोज हों। हम तो चाहते हैं कि आप 5 साल पूरे करें। 5 साल में आपकी यहाँ पे हुकूमत हो जाएगी, 10 साल में आपकी केपी में हुकूमत हो जाएगी। 2023 में हम आपसे पूछेंगे कि आप किया क्या? सही, बस ठीक है। उस दिन मैं फिर एक और प्रोग्राम रख लूंगी हाजी साहब मैं उस दिन भी एक प्रोग्राम कंडक्ट करूंगी आप लोगों के साथ, फिर आप दोबारा इनसे यही वाले सवाल पूछेंगे और हाजी साहब आपके जवाब देंगे। कोई एक प्रोजेक्ट बता दे 3 साल में, जी। बहुत बड़ा अरसा होता है। 3 साल में कोई एक प्रोजेक्ट बता दे कि 3 साल में पीटीआई हुकूमत ने ये कारनामा सारा अंजाम दिया। चले पीटीआई इसके अलावा लंगर खाना बनाया। चले एक तो मान लिया ना, एक मान लिया आपने। लंगर खाने के अलावा अच्छा लंगर की तरफ आवाम को लेके जाना तो ठीक है बस। चले इसके साथ आप प्रोजेक्ट की बात की है निधाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके कितने कोई पर्सनल कोई प्रोजेक्ट्स जो आप कर रहे हो इस फील्ड में रहते हुए, वो कौन से हैं? अच्छा, हम बेसिकली जो है हम करते हैं G17 ना, ये अच्छा। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इसने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक सोसाइटी लॉन्च की थी सही 1984 में। ठीक है। तो वो उसका नाम ही यही है, सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी। अच्छा तो किसी मामलात की वजह से शुरू में तो कोई मसले मसाइल रहे ना सोसाइटी में, सही। उसके बाद जो ये आखिरी 2 to 3 years गुजरे हैं उसमें इनके माशाल्लाह से सारे मामलात भी क्लियर हुए हैं और इनके NOC वगैरह हर चीज़ क्लियर हो गई Clear हो गई है। और ये एक इस्लामाबाद के आबादी के लिए आखिरी चांस है इन्वेस्टमेंट का ना। अच्छा क्योंकि आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, G14 G15 कोई किसी में भी चले जाए ना, तो वहाँ बजट से बाहर चला जाता है आपका जो प्लॉट है, बेशक आप 5 मरले का लें 8 मरले का लें। अच्छा G17 में अभी ये है कि आपके बजट के अंदर आ जाती है ना चीज़ें, चीजें तो ये तो वहाँ पे यानी कि रेट्स जो हैं वो मुनासिब हैं, अभी तक अंडर कंट्रोल हैं। हाँ जी। ठीक है, तो वो हम जरा इमरान खान साहब को फोन करके बता देते हैं नहीं, आप उन्हें अंडर कंट्रोल है वो वाले प्राइसेस थोड़ी सी नहीं प्राइसेस वो फिर ऑलरेडी हाई कर देंगे, फिर फायदा नहीं है आवाम को। नहीं ये बात तो है। देखिए फायदा तो आवाम को देखते हैं अभी कब मिलता है। खैर इसी के साथ हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक। हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं इशू टुडे। वैसे तो हमारे इर्द गिर्द इशू ही इशू रहते हैं, जब हम सो के उठते हैं सुबह को तब भी इशू, सोने के लिए जब हम बेड पे लेटते हैं तो भी इशू है। तो इसी इशू वाले प्रोग्राम को थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाते हैं। हाजी साहब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने अपने हल्के में कितने तरक्याती काम किए और क्या क्या किए हैं? देखिए हमारा तकरीबन 8 महीने हो गए हमें PTI गवर्नमेंट। ठीक है। तो इस 8 महीने की मैं कारकर्दगी आपको बताऊँ ना, हमारे MLA और MPA तो जो हम उम्मीद लेके PTI को शामिल हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर वो 100% या 110% हो गए, पूरा उतरे हैं। पूरे ठीक है माशाल्लाह। एक तो इनका मेल मिलाप हर हफ्ते वाले दिन हमारे साथ वामी की होता है। लगती है और सही। वाम की बात सुनते सही। हैं और जो मसाइल हम लेके जाते हैं और वो उन पे पूरा जो है ना उन पे फोकस सही। रहते हैं और हमारे मसाइल सुनते हैं। गली में लेके जो हमारे काम है, जितनी हमने गलियां वगैरह हम यूसी की अगर यूसी पे चले जाएं तो यूसी में तकरीबन इन पिछले 2.5-3 सालों में हमारा 6 करोड़ के सिर्फ गलियां और नालियां बनी, अच्छा सिर्फ एक यूसी। अच्छा
ٹھیک ہے، مطلب کام جو ہے وہ ہوا، ان کے کام بھی دیکھے تو ہم لوگ اس کے اندر شامل ہوئے. صحیح صحیح صحیح. جو کام ہمارے پچھلے 16-17 سالوں میں نہیں کر سکی پچھلی دور میں، نو پی ایم ایل آپ کے پڑوس والے نہیں کر سکے. جو نہیں کر سکے نا، وہ انہوں نے 2.5 سالوں میں کام کیا. 2.5 سال میں کیے ہیں. دیکھیں جو کام ہے وہ نظر آتا ہے نا، جیسے ہمیں مریم نواز کے مہنگے کپڑے اور جوتے نظر آتے ہیں، اسی طرح سے ان کی گلیوں میں جو کام ہوئے وہ ان کو نظر آتے ہیں. ترقیاتی کاموں کو دیکھا جائے تو انہوں نے بہت کام کیا. اچھا جی، عوام سے ڈھیر جو ہے وہ بہت یعنی کہ زیادہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ اچھا چلے. تو اچھا سمیع اللہ خان صاحب، میں آپ سے پھر یہی بات جاننا چاہتی ہوں کہ جو مریم نواز ہے ویسے تو مطلب کہ ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے، لیکن ان کے مہنگے جوتے جہاں تک مشہور ہیں، چلے وہ بھی ایک الگ بات ہے، اس پہ بھی ہم بات نہیں کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو چودھری نثار صاحب اس بات پہ چھوڑ کے چلے گئے پارٹی کو کہ وہ اس کو لیڈر نہیں مانتے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے وہ تو چودھری نثار صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں، اس کا تو میں نہیں دیکھیں نا پارٹی آپ کی پارٹی سے اس طرح. تو اگر ہم سوال کرتے ہیں تو آپ تو یہ کہیں گے کہ مریم نواز اس کا جواب دے سکتے ہیں، نواز شریف اس کا جواب دے سکتے ہیں. ان کا جواب میں دے دوں گا، ان کا جواب میں ضرور دے دوں گا. لیکن بات یہ ہے چودھری نثار اس ملک کے سینئر ترین پالیٹیشین ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. صحیح. حاجی صاحب کی ان کے ساتھ پرسنل ناراضگی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کے حلقے کے باقی لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں جن سے اتنے عرصے سے وہ جیتتے گئے ہیں، اتنے عرصے سے اگر ایک بندہ ایک سیٹ کو جیتا رہا ہے تو وہاں پہ یہ تو نہیں ہے کہ اس حلقے میں کام نہیں ہے یا وہاں کے لوگوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے یا ان لوگوں کے ساتھ اس کا سلسلہ نہیں ہے. دوسرا، میں نے آپ کو پہلے جس طرح کا بتایا کہ ایک ماں کے پیٹ سے 4 بچے پیدا ہوتے ہیں، ان میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. پارٹی تو بہت بڑی ہے، ایک سلسلہ ہے. اگر اس میں چودھری نثار صاحب کی کہیں پہ اختلافات ہیں تو وہ اختلافات ان کے اس لیول پہ ہیں کہ اس لیول پہ وہ میاں برادری کے ساتھ یا ان کے ساتھ ان کا ایک فیملی ریلیشن، فیملی وہ ہے تو اس میں وہ ناراضگی ہو سکتی ہے. وہ سیاست میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن نثار ابھی تک کسی پارٹی میں نہیں گئے، ابھی تک انڈیپینڈنٹ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چانسز ہیں کہ جب نواز شریف واپس آئے تو ان کو منا لیں گے. بالکل ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. چودھری نثار ایک خاندانی، ایک سوچ، ایک بوجھ اور پاکستان کی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں ان کا اہم کردار ہے، ان کی فیملی کے بہت بڑے مدد کردار ہے. تو وہ انشاءاللہ صحیح فیصلہ کریں گے. اگر وہ انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہوتا نا تو وہ چلے جاتے پی ٹی آئی سے، تو ان کو کیا کیا آفرز نہیں دیں گے، سی ایم بنا دیں گے، کیا کیا آفرز انہوں نے نہیں دی. تو اس نے کہا نہیں، میں آفروں والی نہیں، آپ کی پارٹی جو ہے نا وہ فیس بک پارٹی ہے، آپ ڈانس پارٹی کو سیاسی کرنا ہے. وہ ڈانس پارٹی سیاسی پارٹی کا، میں ڈانس پارٹی میں. اچھا یہ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ مریم نواز میں پوچھتی ہے کہ کون سی ایسی بات ہے کہ یہ جو باقی لوگ آپ لوگ سب لوگ اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. چلے وہ بھی تو بتاتے ہیں، ابھی ان کی وجوہات تو آپ نہیں بتا سکتے کہ کیوں پارٹی چھوڑی نثار صاحب نے. دیکھیں مریم نواز الحمدللہ پاکستان کی اس وقت اگر پاکستان میں بیٹھے تو عوام اس کے اس کی جہاں پہ مریم نواز کھڑی ہوتی ہے عوام اس کے پیچھے نہیں کرتی ہے، عوام اس سے محبت کرتی ہے. وہ جو بات کرتی ہے اس کا جو ایجنڈا ہے وہ بیانیہ کس کا ہے؟ وہ میاں محمد نواز شریف کا ہے. میاں محمد نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس کو وہ لے کے چلی ہے، اس تقدیر کو لے کے چلی ہے، اس جھنڈے کو لے کے چلی ہے. تو وہی تو ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کو بدلنا. نہیں سمیع خان صاحب دیکھیں نا، جب سے مریم نواز کو لیڈر ماننا شروع کیا ہے لوگوں نے تو یہ جماعت کو میں نے نیچے جاتے ہوئے دیکھا ہے. سر آپ مجھے بتا دیں، آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ آپ کے پاس وہ جو گلی بالا میں ایک چشمہ ہے نا، وہ جو چشمہ ہے سب اچھا نظر آتا ہے، وہ آپ کے پاس تو نہیں ہے. آپ کے پی ڈی ایم کی ناکامیوں کی بات کی جاتی ہے، آپ وہاں پہ بھی اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کرتے ہیں. آپ کیٹمنٹ بورڈ کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں عوام کے نیچے سطح پہ گیا، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ آپ دیکھ لیں. اگر عوام اس موجودہ حکومت کو ریجیکٹ نہ کرتی تو یہ رزلٹس آتے. پھر اس رزلٹ کے اس میں تو چلو ہم نے مان لیا کہ آپ نے کہا، آپ نے اس وقت بھی الیکشن کمیشن پہ بھی اعتراض کیا، سب کچھ پہ اعتراض کیا، یہ ووٹ تو عوام نے دیا نا. آپ نے خود کہا کہ نا بڑے شفاف الیکشن ہوئے، تو شفاف الیکشن کا رزلٹ آپ کے سامنے. تو عوام کی پارٹی یا کوئی وہ تو ووٹ کے ذریعے ہوتی ہے، جس کو ووٹ دیتی ہے ووٹ دیتی ہے. اچھا تو حاجی صاحب یہ آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے عوام؟ نہیں بالکل ایسے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو الیکشن کی بات کی تو میرے بھائی نے جی کینٹ بورڈ کے جو الیکشن ہوئے، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو مان گئے کہ یار الیکشن فیئر ہے،
यही नहीं मानते थे कि हाँ जी बिल्कुल। आप लोग नहीं मानते हैं, आप लोगों ने अपने इलेक्शन अभी भाजपा इसका थोड़ी थोड़ी बातें मान रहे हैं, वो मान रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इस वक्त आपने जो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन था उसके खिलाफ आप लोग एहतजाज वो कर रहे थे, हमने तो कोई वो नहीं किया था। नहीं, आपने रिजेक्शन की बात की तो मैं इसलिए हाजी साहब की तरफ आई हूँ कि क्या ये हकीकत है इसमें कितनी के रिजेक्ट कर चुकी है आवाम? उनसे आप दो सवाल करें, इलेक्शन हमारे जीत गए। जी जी जो इलेक्शन हुए हैं अभी, जी, इलेक्शनों की जो कारकर्दगी सामने आई है वो हमारी थोड़ी बहुत जो है टिकटों की जो तकसीम थी उस पर मैं मानता हूँ कि हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। सही, क्योंकि बलदेहात का जो इलेक्शन होते हैं ये बिल्कुल देहात पे बिलादरी बेस पे बिल्कुल, ऐसे होते हैं। ऐसे अगर होते हैं। तकसीम जिस वक्त हो जाए तो उस वक्त मुखालिफ फायदा उठा जाते हैं। तो हमारा थोड़ा सा इस वजह से नाकामी हुई है और इंशाल्लाह अगर आगे देहात के बलदेहात इलेक्शन हुए उस पर इंशाल्लाह बेहतर तकदीरी सामने आएगी। चलो। हमारे घरे मजबूत है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बेहतर करेंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। देखिए अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा निदाल साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपसे तो मैं रिलेटेड रियल एस्टेट से ही मुतल्लिका सवाल करूंगी। ये जो NMST स्कीम है इस पर क्या नॉलेज है आपके पास, वो शेयर करें अगर आप प्लीज। NMST स्कीम जो इमरान खान ने लॉन्च की है ये मेरे ख्याल से मुल्क के लिए काफ़ी करामद होगी, क्योंकि अच्छा। जितने लोग पैसा अपना रोक के बैठे हुए थे ये टैक्सेस से डर के, जो इसने जगह जगह टैक्स लगाए हैं इमरान खान ने, सोने का टैक्स, उठने का टैक्स, ये इस पे टैक्स, तो अच्छा। लोग बड़े परेशान अच्छा, हो गए जब ना ये लोगों टैक्स ने। लगा था ना, सॉरी टू इंटरप्ट, ये शॉपिंग का टैक्स, ओए होए होए, मैं तो बड़ी डिस्टर्ब रही थी हाजी साहब। ऐसे इस बात पे मैं भी कहती हूँ टैक्स बहुत लगा है इसको देख के जो लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे थे ना उन्होंने वो भी छुपा लिए थे और उन्होंने कहा था कि कि हम भाई तो अब ये टैक्स कोई में चीज भी ली तो ये तो हम तो गए फिर, ठीक है। उसके बाद लेकिन फिर टैक्स इसने देना तो देखिए ना निदाल साहब, एक मुल्क की तरक्की के लिए मेरे ख्याल से बहुत अहम किरदार अदा करता है। लेकिन एक लिमिट अगर हम होती है देते ना हैं, हाँ टैक्स जी। की भी, जी। किसी लिमिट के तौर पे लगाया जाता है ना। जैसे PMLN के दौर में टैक्सेस भी हो रहे थे और अब अगर टैक्सेस इसीलिए होते हैं ना कि कर्जा उतारा जाए, टैक्सेस लेके भी कर्जा फिर डबल आप ले रहे हैं, फिर क्या फायदा आपके ये टैक्सेस का? बात तो है बिल्कुल। तो ये इसको देखते हुए मार्केट आपके सामने 2-3 साल से जो रियल एस्टेट की काफी डाउन चल रही थी, तो उसके बाद फिर इसने कुछ सोचा इमरान खान ने तो ये एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की है। माशाल्लाह तो उम्मीद ये है यानी कि ये अच्छी स्कीम है। जबरदस्त है। इससे ये है कि उसने कहा है कि जिसके पास जितनी सरमायाकारी है ना वो रियल एस्टेट में लगाए, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, जितनी मर्जी की चीजें खरीदे, प्लाट ले, घर बनाए, कोई पूछ तो गछ नहीं। इसमें गरीब आवाम को क्या रिलीफ मिलता? गरीब आवाम को तो कभी कोई रिलीफ मिला है पाकिस्तान में? ओहो, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन अभी मौजूदा हुकूमत के दौर में मेरे ख्याल से जो चीजें चल रही हैं, जो हालात वाकयात चल रहे हैं, महंगाई का शोर शराबा है। हाजी साहब आप इस बात को तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मानते ही होंगे ना, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई देखिए, है। महंगाई मैंने आपको पहले बात किया था कि एक पिछली नाकस हाँ बिल्कुल चलो सही। ठीक हो गया। हाँ जी खान साहब, कर्जे इतने लिए थे कि बाहर से गैस इतनी महंगी फोड़ कर दी। हाँ नहीं बात ये ठीक है, देखिए कर्जे आप लोगों ने बहुत ज्यादा ले लिए थे, अभी उसको पूरा करते करते वो हमारे जी। जनाब वो थे किधर अभी अगर उन्होंने कोई कर बेहतर की होती उनकी वो क्वालिटी होती तो जहाँ पाकिस्तान में होते हैं ना, वज़ीर ख़ज़ाना है ना, बिल्कुल। मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना बिल्कुल जी। 7,000 साल कहाँ पे है वो? अगर उन्होंने माशी हालत बेहतर की होती मुल्क की तो वो मुल्क छोड़ अपनी के तो हुकूमत में नहीं भागे, भागते, हाँ अपनी जी। हुकूमत में भागे। ऐसा ही है, ऐसा ही अब है। तक वो वापस आने का नाम नहीं ले रहे, तो ये हिसाब इनके लीडर का। देखिए यही सवाल आवाम भी करती है। देखिए हम तो आम आवाम में आते हैं ना समीउल्लाह खान साहब, तो यही सवाल हमारे होते हैं क्यों ये इस तरह के लोग आपके इस तरह करते हैं, खजाने लूटते हैं और फिर दूसरे मुल्कों में जाके अपने महंगे महंगे घरों में रहते हैं। पाकिस्तान का पैसा है ना, जो जैशियां वहाँ पे हो रही है वो पैसा किसका है? पाकिस्तान अवाम का पैसा है। देखें, ये महंगाई तो इसलिए हुई है ना, जैशियां वहाँ पे यानी ये जवाब देना चाह रहे हैं समीउल्लाह खान साहब। देखें, इसहाक डार साहब के 5 साल की कारकर्दगी डालें। इसहाक डार साहब जब इस मुल्क में वज़ीर ख़जाना थे तो यहाँ पर डॉलर की कीमत क्या थी और आज डॉलर की कीमत क्या है? जब वो वज़ीर ख़जाना थे तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत क्या थी, तो आज क्या है? बात यह है, टैक्स बढ़ना या टैक्स देना में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन टैक्स आप पहले अपने घर से तो शुरू करो। आपने 300 कनाल का बनी गाला 22 लाख रुपए दे के सीडीओ को पे करके लीगलाइज करवा दिया अपना, वहां पे आपको नजर नहीं आया? आपने जो जो कहानियां पिछले 22 साल से लोगों को सुनाते रहे
کہ اس ملک میں یہ غلط ہے، اس ملک میں یہ غلط، کوئی ایک بھی اپنی بات اٹھا لیں جس کو آپ نے آج صحیح کیا ہو. پھر دوسری بات کو آپ آ جائیں، کیا ان 3 سالوں میں اس ملک میں کوئی ایک کام آپ نے کیا؟ کوئی ایک کام بتا دیں کہ اس دیکھیں وہ تو ایک چھوٹے سے حلقے میں خان صاحب حاجی صاحب نے بتا دیا کہ ان کی گلی میں جو ہے وہ بالکل چیزیں بنی ہیں. لیکن دیکھیں آپ نے پوچھا تو وہ تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں نا کہ حاجی صاحب نے کہا کہ چھوٹا سا کام. حاجی صاحب کو جو تبدیلی والا انجیکشن لگا ہے اس کو ابھی 8 مہینے ہوئے. اب 8 مہینوں میں اس کا رزلٹ نہیں آئے گا. وہ ذرا 1 مہینہ اور ٹھہر جائے، 1 مہینے بعد حاجی صاحب کو خود رزلٹ مل جائے گا کہ وہ جو انجیکشن لگایا تھا نا اس کا جواب کیا ہے. ابھی وہ نیا حاجی صاحب 22 سال سے لگا رہے تھے. ہاں جی میں کہہ رہی ہوں جو نواز شریف صاحب انجیکشن لگا کے چلے گئے عوام کو، اس کے ریزلٹس تو اب آ رہے ہیں نا. اسی کے ریزلٹس میرا خیال بھگت رہی ہے یہ عوام بھی. کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں اتنی اچھی کی ہے کہ وہ ملک چھوڑ دے تو کچھ چیزیں دیکھیں اس ملک کی پاکستان کو اور وہاں بیٹھ کے کھا رہے ہیں. ہاں جی ایسا ہی ایسا ہی ہے. حاجی صاحب کو یہ ہاں جی ان کے اثرات جو ہے نا وہ ابھی تک پڑتے ہیں، وہ کتنا پڑتے ہیں. غلطی ہے وہ وہاں کو کر رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. 22 سال سے حاجی صاحب کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا، 8 مہینوں میں سب کچھ نظر آ گیا. 22 سال تک میاں نواز شریف کے نعرے وجن کے نعرے لگاتے ہیں اور آج 8 دیکھیں انہوں نے کوشش کی کہ شاید ان نعروں کی آواز جو ہے وہ نواز شریف چھوٹی سی میری بات، میں آپ ایک صحیح دیکھو، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ سچ کو ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی تحقیق کریں. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ مطلب جو اس کی تحقیق کریں. اس ملک میں 23 سال کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی رہی ہے. اس ملک میں 13 سال کی حکومت پیپل پارٹی کی رہی. اس ملک میں 9 سال کی حکومت پی ایم ایل ایم کی رہی ہے، مسلم لیگ کی رہی ہے. آپ ان 13 سال 23 سال اور 9 سال کی کارکردگی کو دیکھ لیں. پاکستان میں جب 2013 میں مسلم لیگ نے حکومت دی تو اس ملک کے حالات کیا تھے؟ کراچی میں حالات کیا تھے آپ کے؟ دہشت گردی کے حالات کیا تھے؟ لوڈ شیڈنگ کے حالات کیا تھے؟ یہ پوری دنیا آپ کو کہتی تھی کہ یہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا. ریلوے کے امپلائیز کے پاس سیلری نہیں تھی، پینشن کے لیے لوگ لائنوں میں 3 دن انتظار کرتے تھے. یہ ملک دنیا کہتے یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. 2023 سے جب آپ نے اس ملک کو سنبھالا تو اس ملک میں سی پیک دیا، اس ملک میں موٹر وے دیا، اس ملک میں اورنج، مطلب آپ کو میں گن کے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں مجھے آج تک کوئی ایک ایسا پروجیکٹ بتائے، کوئی ایک ایسا نظام بتایا کہ پروجیکٹ ہو جو ملک کی رخ کا بدلا ہو اور وہ میاں نواز شریف کے دور میں یا میاں نواز شریف کی تختی اس پہ نہ رکھو. حاجی صاحب کو میں ایک اور بتا دوں، پی ٹی آئی پوری پی ٹی آئی شوکت خانم پہ بنی کہ شوکت خانم ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. الحمدللہ شوکت خانم کے اوپر بھی تختی میاں محمد نواز شریف کی لگی ہے. اس کو بنانے کے لیے جو ہے نا وہ تیار کر کے لے کے آئے ہیں. ایسی بات ہے کہ آپ پوری لسٹ تیار کر کے لے کے آئے ہیں، لیکن انجیکشن جو لگا چکے ہیں نواز شریف صاحب بھی پاناما پہ آ جائیں. آپ کرنٹ ایشوز پہ آ جائیں. پاناما مطلب آف شور کمپنی، یار خدا کا خوف کریں. آف شور کمپنی میاں نواز شریف کے نام پہ ہی نہیں ہے، آپ ثابت کر دیں. 2 سال آپ نے انٹرنیشنلی آپ نے آڈٹ کروایا، آپ نے کیس کیا نواز شریف فیملی کا. ابھی یہ پچھلے دنوں میں 2 ہفتہ پہلے کیا رپورٹ آئی انٹرنیشنلی؟ آپ نے کیا ثابت کیا کہ کہیں پہ بھی ان کا کسی جگہ پہ بھی کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے. چلو وہاں کی عدالت بھی ہمارے ساتھ مل گئی، انگلینڈ کی عدالت بھی ہماری ہو گئی. خدا کے لیے اتنا جھوٹ بولو، اس ملک کو گمراہ کیا، اس لوگوں کو گمراہ کیا اور ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. ابھی جو آپ نے وہ بنک والا نظام چلایا تھا نا وہ اب آگے نہیں چلے گا. اب یہ 2 سال اللہ کر کے گزارو بس. سلسلہ مانگے کی حکومتیں مانگے 2023 میں پھر دیکھیں گے، پھر بتائیں گے آپ کو نا. چلے سمیع اللہ خان آپ تھوڑا سا سانس لے لیں، آپ بہت لال ہو گئے ہیں بتاتے ہوئے کارنامے پی ایم ایل این کے. تو آپ کے 2 کی پروگرام
काम करने होंगे, अगर मैं खाली किसी एक को उसको बनाना शुरू नहीं, कर मैं दूं इसीलिए कह रही हूँ कि मैं जरा थोड़ा सा स्विच करती हूँ, निदाल साहब की तरफ आती हूँ। निदाल बलोच साहब, मुझे बताएं कि कितना टाइम हुआ आपको इस फील्ड में आए हुए, और आपने कब ये सोचा कि मुझे जो है वो इस फील्ड में आना चाहिए? इस फील्ड में मुझे तकरीबन हुए 3 to 4 years ना अभी। अच्छा, तो यानी कि जब पीटीआई आई है तो तब आप इस फील्ड में? हाँ जी, वो हालात आपको पता है कैसे कर दिए थे उन्होंने। बड़े बड़ों ने कारोबार की तरफ आने का सोचा है, सही। तो ये इसके बाद इसमें आए हैं, माशाल्लाह काम सही चल रहा है, तो जबरदस्त चल एक्सपीरियंस रहा यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि काफी ज्यादा आपका अच्छा रहा? है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो रहा आपका एक्सपीरियंस, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा लोग जो है वो मैंने देखे हैं कि अभी रियल एस्टेट के बहुत ज्यादा ऑफिसेज, अगर ब्लू एरिया की बात कर ली जाए तो ब्लू एरिया में ही इतने ज्यादा ऑफिसेज बन गए हैं कि मतलब हमें आम आवाम को तो समझ नहीं आती कि हमें किसके पास जाना है और कौन रिलायबल है कौन नहीं है। तो ये इसका किस तरह से फर्क असल है? में अब हर दूसरा से तीसरा बंदा ना रियल एस्टेट की तरफ जा रहा है, Exactly, बिल्कुल। क्योंकि 50 लाख नौकरियां उसने दे दी हैं, इस वजह से लोग इस तरफ आ गए। हाँ, नौकरियां में वो इतनी मिली है कि वो संभाली नहीं जा रही हाँ, है, तो वो फिर इस तरफ आ गए, नौकरियां छोड़ छोड़ के ना वो इधर नहीं, आ मेरे गए। ख्याल से ज्यादा लोग इसलिए आए हैं कि वो ज्यादा घर बनाने हैं, तो वो फिर मेरे ख्याल से जरूरत हाँ, ज्यादा बिल्कुल। पड़ेगी। दुनिया से सीरीज जमा हो रही है लगातार, और जहाज बन के लारे पाकिस्तान में नौकरी। बस सीरीज जमा की जा रही है। बड़ी- चले, खैर बहरहाल जो है वो गुफ्तगू, हमारे टाइम का थोड़ा सा प्रोग्राम का टाइम थोड़ा कम रह गया, तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। जाते जाते आप सबसे एक एक पैगाम, जो मैसेज आप वज़ीर आज़म साहब को, जो मैसेज आप आवाम को देना चाहते हैं, तो निदाल साहब आप ही शुरुआत करें, और कोई पैगाम जो आप आवाम, मैं यही पैगाम- नॉर्मल आवाम को देना चाहते हैं। पैगाम तो यही देना चाहते हैं कि आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ दें, बस बहुत हो गई है, काफ़ी साल हो गए हैं, तो इसी से ही कारोबार में भी बेहतरी आएगी। आपके सामने लोग पैसे निकालते हुए अभी डर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ पे आपकी नज़र है, हर चीज़ पे आपका कंट्रोल है, एक एक रुपया लोग निकालते हुए सोच रहे हैं। इसी तरह जैसे अगर नवाज उसके मुशर्रफ दौर में चले जाएं हम, जो 1999 से 2008 का उसका इरा था इसमें पॉलिटिक्स में, तो उसमें उसने ये किया था कि जो बैंक्स थे ना, उसमें जो इंटरेस्ट रेट था ना वो बहुत कम कर दिया था। अच्छा। उससे ये हुआ था कि आपका जो लोगों ने बैंक से पैसे निकलवा के सारे रियल एस्टेट में लगा दिए थे, अच्छा। और आपकी इकोनॉमी ग्रोथ तभी करती है जब आपका रियल एस्टेट ग्रो करता करता है, है। ये बिल्कुल, सारी बिल्कुल। दुनिया के तमाम ममालिक में यही असूल यही अपनाया असूल है, जाता है बिल्कुल। इकोनॉमी ग्रो करने के लिए। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि अब इन्होंने इंटरेस्ट रेट ही इतना बढ़ाया हुआ है, तो लोग पैसे निकाल ही नहीं रहे। निकालते ही नहीं हैं। तो यही तो है एक- कि हर तरफ देखा जाए। सही सही। समीउल्लाह खान साहब, आप कोई पैगाम जो गुस्से के बगैर देना चाहें आवाम को, वो प्लीज दे दीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि अवाम ने धोखा खा लिया है, हम धोखे का समझ भी आ गया है। 2023 में दोबारा इस धोखे को न दोहराएं, अच्छा। और वो इंशाल्लाह नहीं दोहराएगी। अवाम बहुत समझदार है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, सही हो गया। तो आप हाजी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अवाम जो है हमारे पाकिस्तान की अवाम बेशक समझती है कि जो पिछली दौर वो तो मासूम सी आवाम है, उसको तो आप देखें ना, इमोशनल जल्दी हो जाती है। वज़ीर खजाना साहब जो बाहर के मुल्क को लूट के बाहर चले गए, तो अवाम समझती है कि इंशाल्लाह वो इमरान खान साहब ही हैं कि जो इस मुल्क को आगे लेके हाँ, वो गरीबों का ख्याल करते हैं। मेरे ख्याल से उन्हें किसी चीज का लालच तो है नहीं है, इस चीज को तो मैं भी मानती हूँ। पहले अखबार चुके हैं। नहीं, वो सबका ख्याल करते हैं, बेसिकली उन्होंने सबको गरीब कर दिया, अब वो सबका ख्याल करते हैं। वो उसमें एक छोटी सी बात है, हाँ हाल जी। वो कहते हैं कि मेरा अपना तो कारोबार है नहीं, आप लोगों का मैंने रहने नहीं देना। देखें, अब इन्होंने बात नहीं करो बात। अब एक बड़े मियां साहब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाप दादा की विरसे में मिली, हमें जदायतें मिली हैं, हाँ जी। ठीक हाँ है। जी। और छोटे मियां साहब क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें गरीब घराने में पैदा हुए हैं। पैदा- इससे हम अंदाजा वहाँ लगा लेना कि- अलग-अलग घरानों में पैदा हुए हैं मेरे ख्याल से। बड़े साहब हैं या छोटे मियां? चले जब मियाँ साहब वापस आएंगे तो हम एक प्रोग्राम रखेंगे और इंशाल्लाह पूछेंगे उनसे। तो इसके साथ साथ हमें इजाजत दें। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने